Hello students, this is the class 12th and subject is political science. See the cover page of the book. This is the part B. Subject name is politics in India since independence. So students, we are going to start the part B, political science, and chapter number is chapter 6. Let's start the chapter. Today's chapter is Rise of Popular Movements. Again, I am going to remind you, this is according to the old syllabus. Chapter name is Rise of Popular Movement. But according to the updated syllabus, now the chapter name is Social and New Social Movements in India. Let's students see here. See the cursor. I already have marked it and highlighted the name. This is the new name of the chapter, that is Social and New Social Movements in India. Okay students, in this chapter we will deal with the different movements which were held in India during the 70s or 80s. Earlier we already have discussed the BKU, the Bharatiya Kisan Union. This was discussed in the previous videos. Now in this video we are going to discuss about the popular movement, that is the women's movement. This women's movement is also known as anti-Arab movement. So please keep this thing, remember, keep this thing in mind. The chapter name is also changed, that is Social and New Social Movements in India, and topic is anti-Arab movement, that is also known as women's movement. So let's start the women's movement. First of all, we will see what is the meaning of women's movement, okay, and where it was started, why it was started. So all these topics we will cover here in this video. So stay connected. I again telling you to watch the video till the end. पूरा देखें इसको, so that you can understand the topics very carefully. Okay, this will help you to answer in the exams also. Now let's start the movements. When the BKU was mobilizing the farmers of North, an altogether different kind of mobilization in the rural area was taking place in the southern states of Andhra Pradesh. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले हमने भारतीय किसान यूनियन BKU ये अपनी जो टॉपिक था, मूवमेंट थी, इसको पूरा किया था. तो जिस समय हम नॉर्थ में ये BKU को देख रहे थे, भारतीय किसान यूनियन नॉर्थ में 1970s और 1980s में ये मूवमेंट्स चल रही थी, स्पेशली 1980s में. तो उसी टाइम में, सेम टाइम में साउथ इंडिया में भी कुछ मूवमेंट्स चल रही थी, स्पेशली साउथ इंडिया की साउदर्न जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसमें एक बहुत फेमस मूवमेंट शुरू हुई. इट वाज नोन एज द एंटी अरेक मूवमेंट और विमेंस मूवमेंट. देखते हैं एंटी अरेक मूवमेंट कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई. सी द मीनिंग. What is anti-Arab movement? It was a spontaneous mobilization of women demanding the ban on the sale of alcohol in their neighborhoods. ये movement क्या थी? एक spontaneous mobilization थी. Spontaneous means the things which are not planned. Suddenly जो women ने शुरू किया movement को without any planning, जब उनकी problems इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने एक movement शुरू की. तो इस मूवमेंट में मेन डिमांड क्या थी? टू बैन ऑन द सेल ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल जो वाइन है उसके ऊपर उन्होंने बैन करने की, उसको रोकने की डिमांड की. नाउ स्टूडेंट्स सी द पिक्चर्स. ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं आंध्र प्रदेश के न्यूज़पेपर्स में. नियर अबाउट 5000 न्यूज़पेपर्स में ये ऐसी न्यूज़पेपर भरी पड़ी थी कि लिक्कर माफिया टेक टू हील्स एज विमेन हिट बैक. विमेन के आंदोलन से जो लिक्कर माफिया है अब वो अपने जान बचा के भाग रहा है. ठीक है, तो अब देखते हैं स्टोरीज. ये सारी पिक्चर आपको शो कर रही हैं. दीज आर द पिक्चर रिलेटेड टू द women's movement. This movement is also known as anti-Arab movement. Arab means होता है, it is a type of wine. Okay, so see the story. These kind of stories appeared in the Telugu press almost daily during 2 months of September and October 1992. 1992 के पीरियड्स में ऐसी न्यूज़, क्योंकि ये आंदोलन बहुत पॉपुलर हो चुका था, ऐसी न्यूज़ नियर अबाउट तेलुगु प्रेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, कॉमन हो चुकी थी. द नेम ऑफ द विलेज हमने यहाँ पे स्टोरी में चेंज कर दिया. तो जो रूरल वुमेन है, सी हियर द रूरल वुमेन इन रिमोट विलेजेस, मतलब दूर आसपास के जो विलेजेस की वुमेन है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉट अ बैटल अगेंस्ट एल्कोहलिज्म, अगेंस्ट माफिया एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड.
ये आपका मेन आंसर है स्टूडेंट्स, 1 मार्क आंसर है। एंटी एरिक मूवमेंट में वुमेन की लड़ाई जो थी, जो उनकी फाइट थी, किसके अगेंस्ट थी? एक तो अल्कोहलिज्म, दूसरा जो अल्कोहल का माफिया, एंड तीसरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के प्रशासन के अगेंस्ट भी उनकी लड़ाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थी। सो दीज एजिटेशन शेप्ड व्हाट वाज नोन एज द एंटी एरिक मूवमेंट इन द स्टेट। तो इस मूवमेंट का नेम क्या पड़ गया? एंटी एरिक मूवमेंट। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक। This is your NCERT book, okay, and I suggest you to highlight all the important points while reading the book. This will help you during the exams also to learn the important points, okay. So now start the origin. इसका origin कहाँ से हुआ? In a village of interior of देवगुंता, ये इसका नेम, विलेज का नेम है देवगुंता इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नेल्लोर, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे विमेंस ने ड्यूरिंग द अडल्ट लिटरेसी ड्राइव उन्होंने एक अपनी डिस्कशन शुरू की, ओपन डिस्कशन शुरू की, कंप्लेंट की वहाँ पे कि जो भी लोकली जो प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं वहाँ के मेन, तो उस चीज़ का उनकी फैमिली के ऊपर बहुत असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है? क्योंकि जो उनकी हैबिट है, द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म हैड टेकन डीप रूट अमंग द विलेजेस पीपल एंड वाज रनिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कैसे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती थी? बिकॉज द मेन ऑफ द विलेज they were used to have the alcohol, they became the drunkard now, and they remain absent from their jobs or work from the fields. So women has to engage during the work also, उनको काम भी करना पड़ता था, and they have to save the money. Whatever the money was saved, that was used by the men to consume the alcohol. If they are not going to provide this type of alcohol, it means they have to bear the domestic violence. They were beaten also, okay. So that's why women, they all together they complained against this. इसके बारे में उन्होंने पूरी ओपनली डिस्कशन शुरू कर दी। अब ये था पूरा विमेन का जो आंदोलन था, क्योंकि बिकॉज इसमें विमेन जो थी वो मोस्ट अफेक्टेड थी। Women were the worst sufferer of this ill effect of the alcohol, as it resulted in the collapse of family economy, and women had to bear the brunt of violence from the male family members, okay. तो इस वजह से विमेन ने इस आंदोलन को शुरू किया, क्योंकि मेन जो थी उन्हीं को इसका टारगेट बनना पड़ता था, ओके। नाउ सी विमेन इन नेल्लोर, दे केम टुगेदर इन स्पॉन्टेनियसली, मतलब सडनली, एकदम से, विदाउट एनी प्लानिंग, local initiatives to protest against the AREC and forced closure of the wine shop. जो एरिक वहाँ पे वाइन बनाने की भट्टियाँ हैं, जो लोकली वो प्रोड्यूस करते हैं, उस चीज़ को बंद करना है, और जो वहाँ पे वाइन शॉप है उनको बंद करवाना है, ये उनकी डिमांड थी, ओके। द न्यूज़ स्प्रेड फास्ट एंड विमेन ऑफ अबाउट 5000 villages, they got inspired and met all together in meetings, pass resolution for imposing prohibition. अब उन्होंने मीटिंग रखी, सारी विमेन, नियर अबाउट 5000 विलेज की विमेन इकट्ठी होगी उसी टाइम। दिस वाज द सिंबल ऑफ विमेन यूनिटी ऑल्सो। तो उन्होंने मीटिंग्स में मुद्दा उठाया, सबका एक ही था, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाने की डिमांड रखी कि जो भी अल्कोहल है इस डिस्ट्रिक्ट में उसके ऊपर बैन होनी चाहिए। और ये सारा रेजोल्यूशन इट वाज सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहाँ के नेल्लोर के डीसी को ये सेंड कर दिया गया। अब क्या था, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? द एरिक ऑक्शन, जो उनकी नीलामी होती है, एरिक ऑक्शन इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट वाज पोस्टपोन्ड 17 टाइम्स। अब 17 टाइम उसकी नीलामी रुक गई, उसकी सेल रुक जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर को बहुत लॉस हो रहा था। सो दिस मूवमेंट इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट स्लोली स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट। अब ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पूरे आंध्र प्रदेश स्टेट में ये मूवमेंट फैल चुकी थी। नाउ लेट्स मूव टू द next page. You can see the pictures of the women. Now see what was the slogan of this movement. The slogan of anti-AREC movement was very simple. It was prohibition on the sale of AREC, okay. जो वहाँ की कच्ची शराब है, AREC है, उसके ऊपर उन्होंने बैन लगाने की बात की। बट दिस डिमांड was not so simple. It touched upon a large social, economic and political issues. सोशल मतलब ये सोसाइटी से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड, उनकी हरासमेंट से रिलेटेड, वायलेंस से रिलेटेड। इकॉनमी से कैसे रिलेटेड होगी? बिकॉज अब उनकी सेल नहीं होगी तो कितने लोगों को इसका लॉस होगा।
पॉलिटिकल इशू, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज में इन्वॉल्व थी, वो भी अलाउ कर रही थी, उसको भी टैक्स मिलता था. सो दिस बिकम अ मेजर इशू दैट वाज एट द लेवल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो पूरे एरिया में विमेंस की मूवमेंट ने सबको क्या कर दिया, अफेक्ट किया. अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन. अ क्लोज नेक्सस. नेक्सस मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शन. किसके बीच में कॉम्प्लिकेटेड सीरीज थी जो हमें नजर नहीं आ रही, इनडायरेक्ट सीरीज है. अ क्लोज नेक्सस बिटवीन द क्राइम एंड द पॉलिटिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड द बिजनेस ऑफ एरिक. अब इसमें ये बात सामने आ रही है कि इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, बिग लीडर्स, दे वर आल्सो इन्वॉल्वड इन इट बिकॉज दे वर हैविंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस. The state government collected huge revenues by way of taxes imposed on the sale of arrays and was therefore not willing to impose a ban. अब गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी क्योंकि उसको वहाँ से क्या हो रहा है, टैक्सेस मिल रहे हैं, रेवेन्यू मिल रहा है, आमदनी हो रही है, तो गवर्नमेंट इसको बैन करने के लिए बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी. ओके. देन ग्रुप्स ऑफ लोकल वुमेन दे ट्राई टू एड्रेस दीज कॉम्प्लेक्स इशू इन द एजिटेशन. जो उनका एजिटेशन था, मतलब जो आंदोलन था, विरोध था, उसमें उन्होंने इस एंटी एरिक के बारे में अपनी बात उठाई. और ये पहली बार था, फर्स्ट टाइम था दैट दे ओपनली डिस्कस द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एजिटेशन ऑफ वुमेन, that first time they discussed this issue of the domestic violence. Actually this provided the platform to discuss private issues of domestic violence. Thus the anti-Eric movement also became a part of women's movement. So students, this is the major answer. Okay. तो एग्जाम में आपको इस फॉर्म में, कोटेशन फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है. द एंटी-एरिक मूवमेंट वाज आल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ विमेंस मूवमेंट. हाउ विल यू प्रूव दिस. ओके. या फिर इसमें आ सकते हैं गिव यूर स्टेटमेंट्स टू सपोर्ट द कोटेशन. तो इस बात में आपने देना है क्योंकि विमेन की मूवमेंट थी, फर्स्ट टाइम विमेन ने अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी इश्यूज, इवन प्रॉपर्टी इशू को भी यहाँ पे मुद्दे को उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया. तो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. Earlier, women's group working on the issue of domestic violence, the custom of dowry, sexual abuse at the work and public places were active, mainly among the urban middle class women in different parts of the country. तो पूरे कंट्री में ये इशू, ये टॉपिक, ये चर्चा का विषय बन गया, जिसमें और बहुत सारे विमेन से रिलेटेड इश्यूज आ गए, जैसे डॉरी, सेक्सुअल अब्यूज, और ये अर्बन एरियाज में स्पेशली मिडिल क्लास वुमेन में ये सारा डिस्कशन का एक मेन टॉपिक बन गया था. So this was the very important moment that was led by the women in Andhra Pradesh. तो अब इसमें और नए इशू ऐड किए गए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मूवमेंट इतने बड़े लेवल पे आ गए और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए. नाउ सी, अब विमेन ने जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में भी बात करनी शुरू की, क्योंकि जेंडर मेल और फीमेल के वर्क में, उनकी सीट्स में, रिजर्वेशन में, पॉलिटिक्स में, जॉब्स में, एजुकेशन में देयर वर इनइक्वालिटीज. ओके. तो इस जो कॉम्प्लिकेटेड इशू था इनइक्वालिटी का, तो इसके ऊपर भी चर्चा शुरू होगी. तो इस ग्रुप ने, दीज ग्रुप्स रैन अ कैंपेन. अब इन्होंने अपना प्रोटेस्ट कैसे शो किया, इनका मेथड क्या था. दीज ग्रुप्स रैन कैंपेन अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ डॉरी एंड डिमांडेड पर्सनल एंड प्रॉपर्टी लॉज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी. जब हम रवायती तौर पे कहते हैं कि इक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी है, तो सेम जो प्रॉपर्टी लॉज है, जब पर्सनल लिबर्टी है, ऐसी डिमांड्स जो थी विमेन ने रखनी शुरू की. और साथ में उन्होंने कैंपेन निकाले स्पेशली अगेंस्ट द डॉरी सिस्टम. सो दीज कैंपेन कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन इंक्रीजिंग ओवरऑल सोशल अवेयरनेस अबाउट विमेन्स क्वेश्चन. अब इस रैली का इम्पैक्ट क्या पड़ा. ये तो हो गए मेथड, हो गए. आपने हेडिंग लिखनी है स्टूडेंट्स. ये आपके हो गए मेथड, विच मेथड्स वर यूज्ड, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, रिजल्ट क्या निकला. एक्चुअली इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये था सोशल अवेयरनेस. इट क्रिएटेड सोशल अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स क्वेश्चन. जो भी उनके मुद्दे थे उनके बारे में अब लोगों में अवेयरनेस हो रही थी. पीपल केम टू नो अबाउट दीज थिंग्स विच वर अर्लियर हिडन. ओके. सो फोकस ऑन वुमेन्स मूवमेंट ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम द लीगल रिफॉर्म्स टू ओपन सोशल कॉन्फ्रंटेशंस. जो भी उनकी डिबेट्स हैं अब वो ओपनली शुरू होगी. जो सोशल नॉर्म्स पे उनके जो मेन टॉपिक्स हैं उसके ऊपर लीगल रिफॉर्म्स के साथ साथ अब ये सोशल कन्फ्रंटेशन, उनकी डिबेट्स
उसके ऊपर डिफरेंट जो राय या ओपिनियन है वो सब डिस्कस होने लगी। एज अ रिजल्ट द मूवमेंट मेड डिमांड्स ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 90। सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकला कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंडमेंट करनी पड़ी, चेंजेस करनी पड़ी, क्योंकि अब वुमेन को पॉलिटिक्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही थी। तो जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट होती है एक स्मॉल चेंज आती है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना उसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ जो उसमें लिस्ट में या कुछ लॉज में प्रोविजंस ऐड कर देते हैं। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, रिजर्वेशन वुमेन को मिली लोकल लेवल गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी पंचायती राज है उनमें, वहाँ पे गवर्नमेंट ने विमेन को सीट्स अलाउ की। इसके अलावा डिमांड्स और बढ़ गई। अब लोकल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी विमेन की जो सीट्स थी उनकी रिजर्वेशन की बात होनी शुरू होगी, और इसका बिल भी पास हुआ और फाइनली ये डिमांड्स पूरी भी हुई। तो देखते हैं कि पार्लियामेंट में इस चीज़ को सपोर्ट भी किया गया, लेकिन अभी तक ये पूरी 50% इनको सीट्स नहीं मिली हुई हैं। तो जैसे 1/3% इनको कोटा मिला विमेन को। तो देखते हैं अब नेक्स्ट इसमें और कौन कौन से ग्रुप थे। इसमें मेन अपोजिशन टू द बिल हैज़ फ्रॉम द ग्रुप्स इंक्लूडिंग some women's group who are insisting in separate quota for Delhi and OBC। तो इस बिल में कुछ अपोजिशंस और दूसरी विमेंस जैसे दलित विमेन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट है, वो विमेन भी जो अपने सेपरेट कोटा की बात करती थी अब इस मूवमेंट में वो सारे इंक्लूड होगी। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स वी कैन से दिस वाज द विमेंस मूवमेंट, जिसको हमने एंटी एरेक मूवमेंट के नेम पे पढ़ा है। तो both questions are important. It may be come as the women's movement or anti-error movement. So this was the topic. Now I would like to have the summary of the topic. Now I would conclude the chapter by having the summary of this anti-error movement. Actually it was the movement of rural women in Andhra Pradesh to protest against the alcoholism, mafia and government. And this movement was having the roots in the adult literacy drive, where women complained of increased consumption of a locally brewed alcohol arrack by men in their families. Okay, then women in Nellore, they come together spontaneously, local initiatives to protest against the arrack, and they forced to closure of wine shops. Now see the movement, this movement spread slowly overall the district, then later it spread overall the state, and later on it overall spread the country. The anti-arrack movement aimed at the prohibition of sale of arrack. Its demands touched upon the larger section of the society, especially the social, economic and political issues. Then women openly discussed the issues of domestic violence like dowry, sexual harassment and violence. Anti-arrack women movement provided a platform to discuss private issues of the domestic violence. So students, we can say this is the totally women's movement. So no doubt this anti-arrack movement was the women's movement, as it provided a platform for the women to discuss private issues of domestic violence. So this was the first time the women joined the campaign against the dowry and demanded the personal property laws based on gender equality, and consequently the movement demanded equal representation to women in the politics during the 90s. So 73rd and 74th amendment that granted the reservation to women in the local level of political offices. So we can say it was totally a women's movement, and it was very effective women's movement. So students, this was the topic. So again I would like to suggest you to watch all the videos related to this chapter. We are going to provide different topics in each video. Today's video was related to anti-arrack movement, that is women's movement. So thanks students for being here. Stay connected till the next video. Till that